Hello young physics learner, how are you? Welcome to my class, and this is my lecture number 4 under the topic alternating current. Yes, this is class 12 physics, and today we are going to discuss about this circuit. This is again very important topic, but before starting the topic, I want to give you the review of last 3 lectures that I have explained earlier. So in my lecture number 1, under the headings alternating current, I have described the overview of the full chapter. What we are going to read, we are going to understand in this chapter, alternating current. So that was the short overview, and afterward I have described the kind of formation of currents. There are so many kind of waves, and if there is a variable current, the variable current can be formed in the diagram way, in the diagram manner, by different kind of waves. So I have described the waves. Afterward I have described alternating current and direct current, as well as I have explained that what is the distinguished feature of alternating current and direct current, as well as the daily practical use appliances in which alternating current is used, and how many appliances are there in which direct current are used. So that I have described in my lecture number 1. So now come to lecture number 2. In my lecture number 2, I have described about the average current as well as root mean square current. Root mean square current is also called virtual current, and it is equivalent to direct current value corresponding to the same circuit. Actually it is virtual current because it is not flowing, it is not actually flowing in the circuit, it is the mathematical value we are finding by expressions. So I have described that two topic, average current and root mean square current, as well as I have explained you the Fourier function on the basis of which I have derived the expression for average current as well as root mean square current. Afterward come to the lecture number 3. In my lecture number 3, I have described one unknown topic to you, that is called phasor. So how the phasor diagram should be formed, first thing. That second is phasor, what is the meaning of phasor and how it is used in different kind of circuit. I have given the example of R circuit. So in my lecture number 3, I have described about phasor. Again, this is a graphical representation. So let's start today's topic, that is circuit. There are 6 kind of circuit: R circuit, C circuit, L circuit. Afterward, combination of these: CR circuit, LR circuit, LC circuit. This is 6 kind of circuit, and the one common circuit which is most important and which is generally asked in the board examination, this is LCR circuit. So these are overall 7 circuits, but here in this 6th circuit we will discuss about the common mathematical factor. One is voltage, the mains AC mains voltage, which is also EMF. ये मैंने आपको जैसा लेक्चर नंबर 1 में डिस्क्राइब किया था कि दैट वोल्टेज इज इंड्यूस्ड EMF एंड इट इज़ लिंक्ड विद द प्रीवियस चैप्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लास्ट टॉपिक. तो जब भी आप ये चैप्टर अगर स्टार्ट कर रहे हो तो उस स्टार्टिंग से पहले एक बार को आपको जनरेटर डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, विच इज़ गिवन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर. तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा. सो दिस वन इज़ V and I, then power, and then we will form the phasor. एक आपका वेव फॉर्मेशन भी होता है, फेजर बनता है, उससे पहले वेव फॉर्म भी बनता है जिसमें हम लीडिंग और लैगिंग उसमें भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और फेजर में हमें डायरेक्टली दिखती है. बेसिकली फेजर का पर्पज़ लीडिंग और लैगिंग आइडेंटिफाई करने के लिए होता है. वो अभी आपको सर्किट जब मैं बताऊंगी तो अपने आप क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द आर सर्किट. सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट आर सर्किट. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस कि वी
are doing the same steps. Now you have to focus over the mathematical expression. Okay, पहले तो इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी समझ लो. प्रैक्टिकल यूज़ ये है कि हर एक सर्किट, ये जितने भी सर्किट है आपके आसपास ही हैं. आपने आइडेंटिफाई, जब आप रेडियो ट्यूनिंग करते हो, अब तो मोबाइल में इनबिल्ट रेडियो आता है, रेडियो ट्यूनिंग करते हो तो उस समय होता है एलसी सर्किट. रेडियो ट्यूनिंग में एवरी सर्किट इज़ आर सर्किट. हर एक सर्किट में अपना एक रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हर एक सर्किट एक आर सर्किट है. सी सर्किट आपको फ़ैन में मिलता है. जो फ़ैन में कंडेंसर लगा हुआ होता है, दैट इज़ द सी सर्किट. So C circuit is present in your home. Then L is the inductor circuit and inductor circuit is present in tube light. अब इनबिल्ट इंडक्टर आता है. पहले इंडक्टर अलग से एक डिवाइस होती थी जो ट्यूब लाइट में सेंटर पे लगती थी. एक स्टार्टर होता है और एक चोक होता है. चोक जो होता है वो L सर्किट होता है. ठीक है, तो वो भी आपके घर में अवेलेबल है. आफ्टरवर्ड सी आर सर्किट. सी मीन्स कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस सर्किट. तो कैपेसिटर कहाँ पर है? फ़ैन में है. और भी डिवाइसेस में होता है, ऐसा नहीं है कि खाली फ़ैन में ही कैपेसिटर होता है. बट बेसिकली जो कैपेसिटर आप देख सकते हो, जो इतनी बड़ा स्ट्रक्चर है, आजकल सब एम्बेडेड स्ट्रक्चर आता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस का भी डिफरेंस आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है, उसको आप देख सकते हो. तो यहाँ पर सी आर सर्किट वो सर्किट है जिसमें कैपेसिटर और रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन हो. तो जैसा मैंने बताया आपको कि रेजिस्टर, एवरी सर्किट इज़ द रेजिस्टर सर्किट. आर तो होता ही है, तो आप फ़ैन को भी एक एग्जांपल ले सकते हो सी आर सर्किट का, क्योंकि उसमें भी रेजिस्टेंस है एज वेल एज कैपेसिटर है. कैपेसिटर जब एम्बेडेड फॉर्म में होता है तो बहुत स्मॉल होता है, विच इज़ ऑफ द डायमीटर ऑफ 1 माइक्रोमीटर. माइक्रोमीटर के डायमीटर का होता है. एल जो होता है वो भी माइक्रोमीटर के डायमीटर का हो जाता है. अब क्योंकि रेडियो, आपने देखा होगा कि मोबाइल में भी रेडियो होता है, रेडियो ऐप होता है. हर एक मोबाइल में रेडियो ऐप होता है. तो रेडियो ऐप का मीनिंग है कि उसमें एलसी सर्किट लगा हुआ है. ठीक है, तो यानी एक एल भी है और एक सी भी लगा हुआ है. दिस इज़ इन द सीरीज़ कॉम्बिनेशन. सो यहाँ पर ये सर्किट भी आपके होम में प्रेजेंट है. एंड आफ्टरवर्ड एल आर सर्किट अगेन इन द ट्यूब लाइट यू कैन से, क्योंकि ट्यूब लाइट में रेजिस्टेंस भी अपना एक होगा, वायरिंग जा रही है और रेजिस्टेंस के साथ में एल यानी चोक कॉइल है. तो ये जितने भी सर्किट होते हैं ये आपके घर में ही प्रेजेंट हैं. यहाँ आयरन भी एल आर सर्किट का ही एग्जाम्पल है. तो ये अप्लायंसेस आपके आसपास हैं जिसमें ये सर्किट हैं. यहाँ पर जितने भी एक्सप्रेशन होंगे सारे मैथमेटिकल होंगे, बट उसका जो रिज़ल्ट है, जो उसका कंक्लूजन है, दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दीज सर्किट. क्लियर? तो आपको अपने आसपास के सर्किट्स के बारे में आइडिया लग रहा है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस काइंड ऑफ सर्किट. क्लियर? दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सर्किट डायग्राम. तो हम हर सर्किट में ये पूरा फॉलो करेंगे. अब आर सर्किट की बात करते हैं. तो आर सर्किट मीन्स व्हाट? 1 R एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द AC मेन्स. ये AC मेन्स है, इसे कहते हैं AC मेन्स. एंड हेयर V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t. इन 4 टर्म्स में से VIP एंड वेव फॉर्म एंड फेज़र, इनमें से एक टर्म आपका ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है हर एक डेरिवेशन में, और इसी को बेस लेकर के आप स्टार्ट करते हो डेरिवेशन एंड यू विल फाइंड आउट दीज टर्म्स एंड लीडिंग एंड लैगिंग. क्लियर? तो अब यहाँ पर आर सर्किट है, आपको किरचॉफ लॉ पता है, वी विल यूज़ किरचॉफ लॉ. By Kirchhoff law, if we are using this law here in this circuit, then what is the Kirchhoff's second law? Summation of voltage yani potential difference that should be equal to 0 throughout the circuit. So here if we are taking this one is resistance R and I current is flowing through this resistance R, V is equal to V0 sin omega t, then we can write here as the total voltage that is equal to 0. And now what is the total voltage? Whatever be the voltage across this AC main that is provided to this resistance. Okay, so that is why we can write here the provided input voltage V0 sin omega t should be equal to I into R. IR is what? According to Ohm's law, it is voltage. Clear? Afterward what will you do? See here, you have to calculate the I value because V value is already given. This is a one result. जो आप 4 फैक्टर्स निकाल रहे थे उसमें से एक रिजल्ट आपका वो ऑलरेडी है. सो आप लिखोगे I इज इक्वल टू वॉट? V0 ओवर R इंटू साइन ओमेगा टी.
Now what is V over R? According to Ohm's law, V is equal to IR. So V over R is equal to I. So I कैसा होगा ये? That is I naught, because it is the naught value of voltage. Naught का मीनिंग क्या होता है? The peak value. ठीक है, मैंने आपको ये आपको वेव फॉर्मेशन में, दैट मीन्स सेकंड लेक्चर में ये बताया हुआ है दैट जब वेव फॉर्मेशन होती है तो उसमें पीक वैल्यूज़ क्या होती है. जब वेरिएबल करंट होगी तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू जो हमें मिलेगी, इसको Vm से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, V0 से भी. हियर V0 ओवर R इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड sin omega t. So you are getting this result for current. So this one is the second factor that you have calculated, and if you will judge these two factor, then I is less than V. कैसे आया ये? Because you can see V0 ओवर R इज इक्वल टू I नॉट है. R यानी रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये न्यूमरेटर से तो कम है. अगर आप 3/2 कर रहे हो तो 3/2 का मतलब 1.5. दैट मीन्स ये जो रिजल्ट आ रहा है, दिस रिजल्ट इज़ लेस देन 3 वैल्यू. तो दैट मीन्स करंट जो आ रही है वो वोल्टेज से कम है. क्लियर? तो यहाँ पर जब हम डायग्राम बनाएंगे, वेव डायग्राम, तो यहाँ पर करंट के वैल्यूज़ को फॉर द सेम वैल्यू ऑफ टाइम, करंट की वैल्यूज़ को वोल्टेज की वैल्यू से कुछ कम रखेंगे. ठीक है, करंट इज शुड नॉट बी इक्विवेलेंट टू वोल्टेज. सो हियर इट इज़ the equation for current. Now if we are going to find the power, the next step, so power P is equal to होता है VI. Now V value कितनी है? V0 sin omega t and I value is I naught sin omega t. So we will get it as V0 I naught sin square omega t. This is power. ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला आ रहा है. अब इस पावर के फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज पावर. किस सर्किट में? आर सर्किट में. जनरली एवरेज पावर निकालने के लिए मैंने आपको फूरियर फंक्शन बताया था, वही फूरियर फंक्शन आप यहाँ यूज़ करोगे. तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि आपको एवरेज पावर फूरियर फंक्शन के थ्रू निकालूंगी. एवरेज पावर का साइन होता है this one. This is average power. This is the symbol for average power. This is equal to, for the full cycle if we are calculating, so 1 over t 0 to t pt dt. Clear? Now if you will put this value, you will get it as 0 to t and put the value of power here, you will get it V0 I naught. We can write it as P naught. P is equal to VI होता है, तो I naught की वैल्यूज़ के साथ में आ जाएगा P naught. क्लियर है ये? कोई कन्फ्यूजन हो तो बता देना मुझे, कमेंट बॉक्स में लिख देना या डायरेक्टली पूछ लेना मुझसे. सो हियर दिस वन इज़ द वैल्यू एंड दिस इज़ साइन स्क्वायर ओमेगा टी. अब जिन बच्चों ने ये फूरियर फंक्शन वाला लेक्चर अटेंड किया है उनको पता है कि इसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है. मीन्स आप इसको सॉल्व भी नहीं करोगे और आपको पता होगा कि इसका रिज़ल्ट क्या है. बट जिन्होंने नहीं अटेंड किया है उनके लिए मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ ये टर्म. 0 टू टी पी नॉट हम बाहर निकाल लेंगे. 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं, दिस वन इज़ so 1 minus cos 2 omega t divided by 2 dt and 1 over t p naught, you will get it as 0 to t 1 by 2 dt and minus of 0 to t cos 2 omega t divided by 2 dt. ये जो पूरी वैल्यू आती है ये ज़ीरो हो जाती है. चेक कर लेना एक बार. ठीक है, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपका माइनस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, यानी एक ऑलरेडी 2 है तो ये 4 ओमेगा हो जाएगा. ये रिज़ल्ट आता है जब आप 0 और t वैल्यू पुट करोगे तो ये रिज़ल्ट 0 आ जाएगा. ठीक है, ये रिज़ल्ट 0 आ गया. दैट मीन्स एवरेज पावर आपकी आ गई 1 ओवर टी इंटू पी नॉट और हाफ ऑफ इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? t. सो t एंड t कैंसल्ड आउट एंड यू आर गेटिंग द पावर एज पी नॉट बाई 2 एवरेज पावर. मीन्स ये जो रिज़ल्ट निकल के आ रहा है इसका कंक्लूजन ये है कि एवरेज पावर जो होती है वो पीक पावर की हाफ हो जाती है, पीक पावर वैल्यू की हाफ वैल्यू हो जाती है. सो दीज आर द 3 कंक्लूजन यू हैव गॉट फ्रॉम द आर सर्किट. ठीक है, ये मैंने जो बॉक्स बनाए हुए, इन बॉक्स को हम कहते हैं फाइनल रिजल्ट जो आपको निकालने होते हैं. अगर आपसे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में तो डायरेक्टली ये आता है कि डिस्क्राइब द आर सर्किट.
तो जनरली मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि LCR सर्किट या LC सर्किट के बारे में, क्योंकि LC इज़ द रेडियो ट्यूनिंग सर्किट, तो इसलिए LC सर्किट और LCR सर्किट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जनरली उसी में से क्वेश्चन बनते हैं, बट फिर भी एक बेस समझने के लिए ये सर्किट भी सॉल्व करने ज़रूरी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। आ भी सकता है, ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है, अगर पेपर चेंज करना है तो R सर्किट भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो प्रैक्टिस ऑन ईच टॉपिक एट दिस टाइम। क्लियर? सो दिस इज़ द P नॉट ओवर 2 वैल्यू, दैट मीन्स एवरेज पावर पीक पावर की हाफ हो जाती है। नाउ कम टू द वेव फॉर्म एंड फेज़र। ओके, अब हम यहाँ बनाने जा रहे हैं वेव फॉर्मेशन। देखो, वेव फॉर्म अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर टाइम होता है, टाइम एक्सिस, एंड यहाँ आपका होता है I एंड V, दोनों पॉइंट्स होते हैं। I एंड V को अगर आप ले रहे हो तो because V is equal to V naught sin omega t and sine wave is this one, this is sine wave, this is time interval t by 2 and this is t, this one is 3t by 2 and this is 2t। ये दो वेव्स कंप्लीट हो गई हैं तो 2t टाइम इंटरवल हो गया है। ठीक है, अब यहाँ इसको हम कहते हैं पीक वैल्यू। तो ये आपको, अगर ये आपका वोल्टेज वेव है यानी V वेव इसे हम कहेंगे, इफ़ इट इज़ V वेव देन दिस इज़ द पीक वैल्यू ऑफ voltage. Okay, afterward because the current value is comparatively less than, ये V नॉट ओवर R यानी R डिवाइड हो रहा है इसमें, तो comparatively less है, तो करंट वेव को ओवर द, बिकॉज साइन ओमेगा टी सेम वैल्यू दी हुई है, तो जब आप t को 0 यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ पर भी t को 0 रख रहे होगे, तो t को 0 रखोगे, दिस इज़ द 0 वैल्यू। t को 0 रखने पर आपके पास साइन की वैल्यू 0 हो गई, यानी I वैल्यू 0 है। जब आप यहाँ पर t को t बाई 2 रख रहे हो तो यहाँ पर भी t बाई 2 रख रहे हो, तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी, ये ओमेगा की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई टी बाई 2, ये वैल्यू। आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, दिस इज़ पाई, साइन पाई कितना होता है, दिस इज़ 0, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई 0। यहाँ पर होगा t बाई 4, अब t बाई 4 पे चेक करो, अगर हम इसे t बाई 4 कर देते हैं तो ये पाई बाई 2 आएगा, पाई बाई 2 का मतलब साइन पाई बाई 2 इज़ 1, सो आई नॉट यानी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो अब यहाँ पर आई नॉट यहाँ पर मैक्सिमम है तो आई नॉट भी मैक्सिमम है, दैट मीन्स आई की वैल्यू तब पीक पे आएगी जब वोल्टेज पीक पे, आई की वैल्यू 0 आएगी जब वोल्टेज 0 है। सो दिस इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज़ आई वेव, अंदर वाली वेव आई वेव है और बाहर वाली वेव वी वेव है। सो दिस वन इज़ द वेव फॉर्मेशन। क्लियर है ये? अब हम फेज़र बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि फेज़र जो होता है उसमें एक्स और वाई एक्सिस पे कुछ नहीं रखते हैं, बिकॉज फेज़र इज़ द रोटेशन डायग्राम, यानी रोटेटर इसे हम कह सकते हैं, जो लीडिंग और लैगिंग को बताता है। तो बिकॉज V इज़ इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज़ इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, तो दोनों सेम फेज़ में, जब यहाँ t 0 रख रहे हैं तो यहाँ पर भी वैल्यू वोल्टेज 0 हो रहा है, यहाँ पर भी 0 हो रहा है, बोथ आर मूविंग इन द सेम फेज़। वोल्टेज वेव V वेव अप साइड है तो I वेव भी अप साइड है, V वेव डाउन साइड तो I वेव भी डाउन साइड, तो दैट मीन्स व्हाट कि ये सेम फेज़ में मूव कर रही हैं। दैट इज़ वाई इफ़ वी आर ड्राइंग द फेज़र, तो यहाँ y एक्सिस में भी कोई वैल्यू नहीं है, x एक्सिस में भी कोई वैल्यू नहीं है, इट जस्ट इंडिकेट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इट कैन बी सेड एज रोटेटर। सो हियर दिस इज v vector and corresponding I vector। क्लियर? अब यहाँ पे जो एंगल है दिस इज corresponding टू ओमेगा टी, जिसको हम थीटा लिख सकते हैं, एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। सो ये एंगल शो कर रहा है कि बोथ v वेक्टर एंड I वेक्टर बोथ आर इन सेम फेज एट द सेम एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर? जब ये 90 होगा तो ये दोनों एक साथ 90 पर आएंगे, यानी ये मूव कर रहा होगा रोटेटर और ये मूव करते हुए सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर आएंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड द फेज़र ऑफ दिस आर सर्किट। दिस इज़ आर सर्किट फेज़र। दिस इज़ वेव फॉर्म इन आर सर्किट। दिस इज़ आई वैल्यू इन आर सर्किट, एवरेज पावर इन आर सर्किट, वोल्टेज इन आर सर्किट। क्लियर? तो जब आपसे क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब आर सर्किट, तो डिस्क्राइब आर सर्किट 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, एंड उस 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इतने डेटाज निकालने होते हैं। सो एवरीथिंग इज़ मैथमेटिकल, सो इट नीड प्रैक्टिस, यू कैन डू इट। क्लियर? चलो समझ में आ गया, तो नेक्स्ट सर्किट पे आ जाते हैं, दैट इज़
C circuit. Next circuit is C circuit. ठीक है, ये सिंबल AC मेंस का होता है. This one is AC mains, and again we will write V is equal to V naught sin omega t. Here this one is a capacitor having capacitance C, and the charge correction over here is Q. Clear? If we will apply the Kirchhoff law, then we will write the result as summation of E, that is equal to 0. So we will place this value V naught, V that is equal to the voltage across the capacitor. आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है Q is equal to CV. So V is equal to what? Q by C. That is the result. If the initial charge is Q, हमने यहाँ पे लिए हैं तो इसको Q कर दो, ये Q वैल्यू है. इनिशियल चार्ज क्या, आप वेरिएबल चार्ज वैल्यू ले रहे हो यहाँ पर Q, तो आपने यहाँ पर रखा कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q by C. जो चार्ज वैल्यू है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, AC मेंस. सो दैट इज वाई दिस वन शुड बी द रिजल्ट. नाउ V इज इक्वल टू Q by C and V is equal to, according to this AC means value, it is V naught sin omega t which is equal to Q by C. क्लियर है ये? अब आप यहाँ से क्या करोगे, CV naught sin omega t that is equal to Q हो जाएगा. आपको क्या निकालना है, एक रिजल्ट तो आपके पास ऑलरेडी है, दूसरा रिजल्ट क्या निकालना होता है, I. तो अगर आपको I निकालना है, you can put differentiate this equation because I is equal to क्या होता है, as I is equal to dq by dt. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. सो डिफ्रेंशिएटिंग दिस वन, इट इज़ इक्वेशन नंबर 1. डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 यू विल गेट इट एज dq by dt विच इज़ इक्वल टू I. ये राइट साइड हो गया. लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, C V naught d by dt of sin omega t. देखो वेरिएबल टर्म ये V नहीं है, V पीक वैल्यू आ रही है V नॉट, तो V नॉट पीक वैल्यू तो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी और C इज़ द कैपेसिटेंस. तो ये दोनों वेरिएबल वैल्यू नहीं है. टाइम के अकॉर्डेंस में वेरिएबल क्या है, साइन ओमेगा टी टर्म, तो हम वो निकाल लेंगे यहाँ पर. अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है. नेक्स्ट इज I, क्योंकि Q, ये Q बाई Q dq बाई dt क्या हो गया, I इज़ इक्वल टू C V नॉट साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, दैट इज कॉस ओमेगा टी. सो विल गेट हियर एज कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा. एक ओमेगा इधर आ जाएगा, C V नॉट ओमेगा. ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वेरिएबल के साथ का वो बाहर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में. सो विल गेट दिस टर्म. अब आप ये देखो कि ये टर्म जो होना चाहिए, दिस शुड बी इक्विवेलेंट टू आई नॉट होना चाहिए. दिस शुड बी इक्विवेलेंट टू आई नॉट. तो इसको आई नॉट बनाने के लिए करना क्या होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग्स में आई शुड बी इक्वल टू वी बाई आर. यानी अगर हम आर को ये रख लें कि आर इज़ इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी, यानी ये दोनों टर्म को हम आर मल्टीप्लिकेशन में इसका रेसिप्रोकल आर एज्यूम कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, आर को रखेंगे तो ओमेगा सी ऊपर जाएगा, ओमेगा सी वी नॉट ये टर्म आ जाएगा. सो दैट मीन्स वॉट कि ये जो रेजिस्टेंस टर्म है ये ओमेगा सी है. अब इसको हम रेजिस्टेंस नेम नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट टर्म होता है अनटिल एंड अनलेस फिजिकल कंडीशन गेट्स चेंज्ड. सो यहाँ पर क्या होना चाहिए, that this is the variable term depends on omega. Omega is the frequency. So what we have to do, we will term it with the different notation, that is XC. XC is called capacitive reactance. Okay, this is capacitive reactance just equivalent to resistance. C circuit यानी कैपेसिटर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस. Okay, got it?
सो इस एक्सी की वैल्यू कितनी है, अभी आगे बहुत काम आनी है, इसको फॉर्मूला को लर्न कर लेना. एक्सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इट्स वैल्यू इज 1/ωc. व्हाट इज एक्सी? इट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इट्स वैल्यू इज 1/ωc. क्लियर? अब इस वैल्यू के बेसिस पर हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I0 cos ωt. क्लियर? अब ये देखो आप रिजल्ट आ गया I का, ये V में V इज इक्वल टू V0 sin ωt. हियर वी आर गेटिंग I0 cos ωt. तो अब हमारे पास क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स होते हैं, रिलेशन होते हैं, तो हम इस cos को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो वी कैन राइट इट एज I0 sin 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. सो वी कैन राइट इट एज sin 90 प्लस थीटा. ऐसा क्यों किया? इससे हमें क्या पता चल जाएगा? लीडिंग एंड लैगिंग. सो विच वन इज लीड एंड विच वन इज लैग. तो ये आपका आ गया आई का फंक्शन. यानी इसको अगर आप रिवर्स लिखना चाहो तो ओमेगा टी में π/2 ऐड हो जा रहा है. मीन्स क्या है कि जिस समय टी 0 पर, यानी टाइम जब 0 हो जा रहा है, तो ये साइन 0 हो जाएगा. साइन 0 मीन्स व्हाट? 0. तो v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. जिस समय वोल्टेज 0 है उस समय अगर आप यहाँ पे भी वही वैल्यू 0 रखोगे जिस टाइम पे t 0, तो साइन π/2 आएगा. π/2 मीन्स 1, यानी I इज इक्वल टू I0 हो जाएगा. जिस समय वोल्टेज 0 है उस समय करंट पीक पर है, मैक्सिमम है. इसका मतलब करंट क्या है? लीड कर रही है. ठीक है, ये तो हमें इन दोनों एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि करंट लीड कर रही है, आगे जा रही है, और वोल्टेज उसके पीछे है. वैल्यूज़ में नहीं. वैल्यूज़ क्या है? वैल्यूज़ तो वोल्टेज की ऑब्वियसली कंपेरेटिवली ग्रेटर ही होगी करंट से, बट यहाँ पर करंट आगे जा रही है, यानी एंगल वाइज, आप डायरेक्शन वाइज इसे कह सकते हो कि करंट आगे जा रही है और करस्पॉन्डिंग वोल्टेज वो पीछे है. सो यू विल गेट इट एज दिस वन एंड वी कैन नाउ कैलकुलेट द पावर. सो पावर P इज इक्वल टू होता है VI. V इज इक्वल टू V0 sin ωt एंड I इज इक्वल टू I0, इससे पहले वाला टर्म क्या आया था? cos ωt. So we will put this term and we will get it as V0 P, this one, and sin omega t cos omega t, sin theta cos theta. So यहाँ पर एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया. sin omega t cos omega t. ऐसा क्यों किया? ताकि हमें sin 2 omega t मिल जाए. So we will get it this term. समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस को हम यहाँ यूज़ करते जा रहे हैं. So V0 और I0 को हम P0 कह देंगे, P0 डिवाइडेड बाई 2, एंड हियर वी आर गेटिंग साइन 2 ओमेगा टी. जैसे पहले वाले रिलेशन में cos 2 ओमेगा टी आया था, यहाँ पर साइन 2 ओमेगा टी आ रहा है. अब हमें निकालनी है एवरेज पावर. सो एवरेज पावर रिप्रेजेंटेशन दिस वन फॉर फुल साइकिल 1/t 0 to t pt dt. Now we will put the value 1/t 0 to t pt की वैल्यू दिस वन P0 डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 ओमेगा t dt. 1/t P0 बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ गया. उसके बाद साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos 2 ओमेगा t विद माइनस साइन डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा. क्लियर? And this one should be under the limit 0 to t. Then you will get it as P0 over 4 omega t. Clear? Cos 2 omega t. If you are putting the t as capital T, so cos 2 omega की वैल्यू होती है 2 pi by t into capital T. So it will come as 4 pi. 4 pi means 0, cos 0. तो cos 0 is 1 minus of, जब आप t को 0 पुट करोगे you will get it as cos 0. Okay, so here 4 pi यानी 1 and cos 0 means 1. So 1 minus 1, ये माइनस साइन ऑलरेडी चल रहा था. 1 minus 1 is 0. So here you will get the answer as 0. So average power in case of C circuit is 0. क्लियर है? ये स्टेप्स अगर आप देखो नोट डाउन करो, आपको अपने आप ही इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल और इंटीग्रल जो फार्मूला और वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं वो अपने आप समझ में आती जाएंगी. अभी भी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है. अब यहाँ पर एवरेज पावर 0 आ गई. आर सर्किट में एवरेज पावर 0 नहीं आई थी, पीक वैल्यू की हाफ आई थी. यहाँ पर एवरेज पावर 0 आ रही है. तो ये आपके रिजल्ट्स निकल के आ गए, वी आई एंड एवरेज पावर. अब आपको नेक्स्ट क्या करना है?
अगर क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन सी सर्किट, तो आपने इतने टर्म निकाल दिए, उसके बाद क्या करना होता है, वेव फॉर्मेशन, एंड आफ्टरवर्ड यू हैव टू फाइंड आउट द फेजर. क्लियर? सो वी विल गेट दिस रिलेशन हियर. वेव फॉर्मेशन, जब वेव फॉर्मेशन करते हैं तो x और y दोनों में वैल्यूज़ होती हैं. यहाँ पर v और i दोनों होगा, यहाँ पर t है, एंड v इज़ द साइन वेव. तो ये साइन वेव इस तरीके की आ रही है, ये वोल्टेज है, ये v वेव है. एंड इफ़ यू आर टेकिंग द i वेव, सो i वेव इज़ लीडिंग, यहाँ पे π/2 से लीड कर रही है, ओमेगा t के साथ में π/2 ऐड हो रहा है, तो ये लीड कर रही है. तो यहाँ पर होता है, देखो यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर होता है t/4, ये होता है t/2, और ये होता है 3t/4, एंड दिस वन इज़ t. ये एक वेव कंप्लीट हो गई. ठीक है, अब इस वन वेव में कंप्लीट होने पर अगर आप ओमेगा के कॉरस्पॉन्डेंस में वैल्यू पुट करोगे तो थीटा इज़ व्हाट, ओमेगा t. ठीक है, अब आप जो t की वैल्यूज़ पुट करोगे तो थीटा आपको मिलते जाएंगे 2π/t इंटू, जब आप t 0 रख रहे हो तो ये 0 हो जा रहा है, t/4 रख करके देखो, टाइम इज़ t/4, तो कितना आ रहा है, π/2. तो यहाँ पर होती है π/2 वैल्यू एंगुलर फॉर्म में, यहाँ पर कितनी होती है, पाई वैल्यू. दिस इज़ 3π/2 एंड दिस इज़ 2π. क्लियर? तो इस तरीके की वैल्यू एक वेव में कंप्लीट हो गई. समझ में आ रहा है? तो एंगुलर फॉर्म में भी आप ये वैल्यूज़ निकाल सकते हो सेम रिलेशन से. नाउ यहाँ π/2 आगे वेरी करी, जो i है वो ओमेगा t से π/2 आगे, यानी जब आपने वोल्टेज वेव 0 से शुरू की थी, v वेव, तो करंट वेव को आप यहाँ से शुरू करोगे. ठीक है, कहाँ से, π/2 से, π/2 आगे है ना, तो π/2 से शुरू करोगे. ये लीडिंग को शो कर रहा है, तो यहाँ पर ये लीड कर रहा है. पीक वैल्यू कम है करंट की, दिस इज़ I0, और फिर ये जहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम है वहाँ पर करंट मिनिमम है, दिस वन एंड दिस वन. ये आ गई आपकी I वेव, दिस इज़ I वेव. तो आप देखो पीक वैल्यू कम है बट लीड कर रही है, डायरेक्शन वाइज करंट लीड कर रही है. सो दिस इज़ द वेव फॉर्मेशन एंड द करंट इज़ लीडिंग. I लीड्स ओवर V. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर निकल करके आता है, पूछा जाता है जनरली, ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन जनरेट हो जाता है. सो करंट लीड करती है किसमें, सी सर्किट में. नाउ इफ़ यू आर ड्राइंग द फेज़र, फेज़र में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू पुट नहीं करते हैं. सो इफ़ यू आर टेकिंग दैट वी वेक्टर हेयर, ये है वी वेक्टर. ठीक है, दिस इज़ वी वेक्टर एंड दिस इज़ फॉर्मिंग एन एंगल ओमेगा टी फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन. देन आई इज़ 90 डिग्री लीडिंग, दिस इज़ आई वेक्टर, and it is leading by 90 डिग्री, π/2, 90 और π/2. तो ये 90 I लीड कर गई, तो V अगर पीछे है तो I उससे 90 डिग्री आगे है. सो दैट इज़ द फेजर डायग्राम corresponding to C circuit. I hope this circuit is clear to you. Clear? So these are the two circuit I have discussed today. अब जैसे जैसे आप सर्किट, ये सर्किट जो स्मॉलर सर्किट है, इसको सॉल्व करते जाओगे ना, तो जब आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट आएंगे, सेम मेथड आप अडॉप्ट करने वाले हो वहाँ पर भी, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. तो इसीलिए अभी इन सर्किट को सॉल्व करो साथ में, ताकि आपके लिए आगे की सर्किट जहाँ कॉम्प्लिकेशंस आने हैं थोड़े, वो सर्किट आपको सॉल्व करना ईजी हो जाए. क्लियर? सो दीज आर द ओवरऑल रिजल्ट. मैं फिर से एक रिव्यू कर देती हूँ इसका. आपका वोल्टेज की वैल्यू आई थी V0 sin ओमेगा टी, करंट की वैल्यू ये है, एवरेज पावर 0 होती है, करंट लीड कर रही होती है, दिस इज़ द वेव फॉर्मेशन, दिस इज़ फेज़र. क्लियर? इसको फेज़र कहते हैं, याद रखना. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद द नेक्स्ट सर्किट. आई विल बी मोर हैप्पी इफ़ you will already solve the next circuit, that is L circuit. अपने आप से सॉल्व करके देखना. अगर आ गया अपने आप से तो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपने सॉल्व कर लिया है. ठीक है, विदाउट हेल्प. आप यही सेम मेथड अडॉप्ट करो, कोई बुक मत देखना. ठीक है, अपने आप से सॉल्व करके देखना सेम मेथड से कि आपका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे. नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद द नेक्स्ट 2 kind of circuit.